जो मुझे रीजन लगा कि मैं सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाया इन स्पाइट ऑफ रीचिंग द इंटरव्यू, वो था मेरा ओवर कॉन्फिडेंस। सो आई थॉट दैट आई नो एवरीथिंग, मुझे अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यूपीएससी सो अनप्रेडिक्टेबल, इट हम्बल्स यू एवरीवेयर। सो आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ वीडियो गेम्स, पर्टिकुलरली असैसिन्स क्रीड वाइकिंग्स। उसमें फ्लोट्स का जिक्र बार-बार हो रहा था। ओके, तो मैं वही बोला, गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज, और वहां शायद मेरा वो काम आ गया। आई थिंक वन ऑफ द रेयर टॉपर जिसने कभी नोट्स नहीं बनाए पर्टिकुलरली। मैंने हमेशा बिलीव किया कि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को रिड्यूस करना चाहिए। तो मैंने ये देखा था कि ऑलरेडी इतने टॉपर्स मेरे से पहले उन्होंने नोट्स बना के रखे, तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय एनर्जी इन उसी को नोट्स में दोबारा कन्वर्ट करूं। अगर आप उसी चीज को पढ़ के उसको खुद अपने वर्ड्स में लिखते हो, आइदर थ्रू टेस्ट सीरीज और किसी और वे में, या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके, देन यू आर डूइंग एक्टिव रिकॉलिंग, और उसका जो रिटेंशन पीरियड है दैट इज मच ग्रेटर। कि आप सिलेबस नहीं, आप ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाओ, एंड सेकंड आप प्रैक्टिस बहुत करो। उन चीजों पर मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट पे फोकस। अगर आप एवरीथिंग अंडर द सन पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यू विल रीड नथिंग अंडर द सन, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, आप कभी रिवाइज कर पाएंगे। सेकेंडली, आई मेड अ मंत्र फॉर माई सेल्फ कि वॉट एवर थिंग आई कुड रिवाइज, ओनली दैट आई वुड बी स्टडी। मैं कोई ऐसा रिसोर्स स्टडी नहीं करूंगा जिसको मैं रिवाइज नहीं करूंगा। hello everyone, I welcome you on behalf of Disha Publication. Today we have a very interesting guest with us, Kunal Rastogi. Kunal has topped UPSC CSE 2023 with an all India rank 15. Kunal comes from Lucknow. His father is a bureaucrat and he has graduated from BITS Pilani with civil engineering. The journey of Kunal from an aspirant to UPSC topper has been just like a roller coaster ride, wherein he has seen a lot of ups and downs, and some of these ups and downs are very surprising. He cleared prelims, mains, and went up to the interview stage in the first attempt. In the second attempt, he could not even clear the prelims examination, but he still did not lose hope. And in the third attempt, he not only cleared the examination, but topped UPSC CSE 2023 with an all India rank of 15. The story of Kunal is a story of patience and perseverance. In this conversation, we would not talk about routine topics like syllabus, pattern, trend, how do you select an optional, or how do you do answer writing, and how do you attempt an ethics paper, but rather we would deep dive into the strategy and secrets of Kunal to understand how do you go about cracking India's toughest examination, and that too almost effortlessly. So welcome, Kunal. Thank you, and it is great to have you. And I would like to start the conversation wherein I would, just for the understanding and to set the context right, if you can quickly describe your journey from an aspirant to, almost topping the examination. So the feeling is surreal, but I don't think the journey is still over. Till now, I get goosebumps. Prelims is 1 week away, and some of my friends are texting me about how to go about the examination, and I still feel very afraid when I look at the prelims paper. So I think that journey will always be embedded in my heart. Perhaps now I'm a little bit more relaxed since I don't have to give the examination again. But that journey is still has taught me many life lessons, and I think it would continue to inspire me to work even harder. तो स्ट्रेट अवे कमिंग टू ए क्वेश्चन विच इज बार बार मेरे मन में, ऐसा क्या है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में कि एनी द स्टूडेंट हु इज एक्चुअली गोइंग टू टॉप द एग्जामिनेशन से 11 or 12 months down the line वो क्लियर ही नहीं कर पाता? दैट व्हाई इज दैट it looks so much uncertain, or why is that you can't take prelim exams? There are a lot of toppers who have told me that you can't afford to take prelims exam lightly. So what makes this exam so uncertain or risky exam, sir, especially the prelims? Sir, unlike the other two stages, that is mains and interview, the prelims is very uncertain, not because of the wide canvas on which the questions may be asked, but also the pattern of questioning. They also change almost each and every year. तो लास्ट टाइम हमने जैसे देखा कि कुछ 40 से 50 नए टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने पूछ लिए। अब अगर आदमी ने बहुत लाइटली लिया वो और प्रैक्टिस नहीं की, तो हो सकता है वो 40-50 क्वेश्चंस में उसको बहुत मुश्किल हो आंसर करने में। किसी ने अगर PYQs नहीं देखे हैं तो हो सकता है उसको थीम्स नहीं पता जिसमें यूपीएससी पूछ रहा है। नाउ ही इज रीडिंग एवरीथिंग अंडर द सन बट नॉट व्हाट यूपीएससी इज ट्राइंग टू आस्क, तो फिर भी आपका अनसर्टेनिटी आ जाएगी। थर्ड थिंग सर, आई फील दैट प्रीलिम्स इतना अनसर्टेन इसीलिए है ताकि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करे। तो यूपीएससी इज ऑलवेज ट्राइंग टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम फील्ड्स व्हिच वर नॉट अर्लियर आस्क्ड, सो दैट सबको, चाहे वो अर्बन एरियाज हो चाहे वो रूरल एरियाज हो, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। और हम लोग कभी कभी ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीजें, लेकिन वो चीजें एकदम सिंपल सा पूछ लेता है और हम उसी में फॉल्टर कर जाते हैं। So that is why I think इतना अनसर्टेन है, और जितना आप फोकस करेंगे उतना आपका बेटर चांसेस। नो, बट जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक एस्पिरेंट है, लेट्स से हम कुणाल का एग्जांपल लेते हैं। कुणाल ने पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस भी क्लियर किया,
और ठीक ठाक मार्क्स से क्लियर किया, बहुत ज्यादा मतलब कम ज्यादा तो नहीं कह सकते, बट ठीक एग्जाम से क्लियर किया. When an aspirant is clearing the main examinations with decent marks, you can confidently and bravely say कि भाई बंदे को नॉलेज है, उसको पता है कि क्या सब्जेक्ट है, क्या लिखना है. बिल्कुल. तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट्स की, और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेप्थ में है, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं. तो वो एस्पिरेंट प्रीलिम्स में जाके आंसर क्यों नहीं कर पाएगा? या तो ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल बेस्ड चीजें पूछ लेते हैं, वो उस वक्त मतलब नहीं याद रहती. बट अगर किसी को सब्जेक्ट की कंसेप्चुअली कोई स्ट्रांग है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो क्लियर ही ना कर पाए प्रीलिम्स? तो सर मैं आपको अपने जो सेकंड अटेम्प्ट है उसके दोनों के मार्क्स बताता हूँ. तो मेरे GS 1 में 103 थे एंड इन माय CSAT आई स्कोर्ड 65. और प्राइमरी जो मुझे रीजन लगा कि मैं सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाया इन स्पाइट ऑफ रीचिंग टू द इंटरव्यू, वो था मेरा ओवर कॉन्फिडेंस. परहैप्स क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू निकल गया, तो आई थॉट दैट आई नो एवरीथिंग, मुझे अब पढ़ने की जरूरत नहीं है. लेकिन यूपीएससी सो अनप्रिडिक्टेबल, इट हम्बल्स यू एवरीवेयर. और मैंने फिर क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिया था, तो हो सकता था कि जो GS 1 की जो अंडरस्टैंडिंग की बात करें, आई हैड डेवलप्ड दैट, वो कॉन्सेप्ट्स आ गए थे. तो इन फर्स्ट पेपर आई वाज एबल टू स्कोर डिसेंटली वेल. लेकिन सेकंड पेपर जो CSAT था, वो मैंने बहुत लाइटली ले लिया. आई वाज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि यार मैं इंजीनियर हूँ, ये तो निकल ही जाएगा मेरे से. और मैंने उसका प्रैक्टिस नहीं किया फिर, and that's why I failed in that particular examination. So you failed in that examination CSAT, because of CSAT. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इसमें इतने मूविंग पार्ट्स हैं कि यू नेवर नो आप कौन से पार्ट में जाके फेल करेंगे. तो very interesting. I would also to all the listeners, because मैं ये बात बहुत सालों से लगातार हर बार हजारों बार सुनता हूँ कि ये भी कहा जाता है कि जो इंजीनियर्स हैं उनको CSAT में एक काइंड ऑफ अपर एडवांटेज है या एडेड एडवांटेज है. So, as he said that, UPSC surprises you at every stage. So you can't afford to take it casually or take it lightly at any stage, be it prelims or be it CSAT or whatever it is. और अगर हम बात करें first attempt, but before coming to that, जब second attempt में prelims में नहीं हुआ, तो I'm sure it must be shattering. Shocking, so sir. how do you take up वहां से जब एक आदमी ने पहली बार इंटरव्यू तक पहुंच गया, अगली बार प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हुआ, तो वहां से उठ के कैसे अपनी तैयारी को, आई से दैट लुक्स एंड इसमें पेशेंस और परसिवरेंस आई साइड, बिकॉज टाइम भी बहुत चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपका दूसरा अटेम्प्ट आपको 2 महीने या 3 महीने में, आपको अगला अटेम्प्ट पूरा 1 साल तैयारी करनी है. तो उस वक्त क्या किया एंड व्हाट वर द थॉट्स व्हिच वर कमिंग? क्या कभी ऐसा मन में आया कि छोड़ देते हैं यार, नहीं हो पाएगा, या सर सिर्फ अगर सिर्फ बात होती तैयारी 1 साल की, तो वो भी आदमी झेल सकता है. लेकिन जब आती है रिजल्ट की बात, तो 2022 में जब मैं प्रीलिम्स फेल हुआ, तब मुझे पता था कि अगर मैं एग्जाम क्वालिफाई करता भी हूँ तो उसका रिजल्ट 2024 में आएगा, विच इज 2 years हेंस. और कहाँ मैं सोच रहा था अ वीक बैक कि मैं इसी वाले अटेम्प्ट में IAS IPS शायद बन जाऊंगा. तो वो जो 2 साल का एक बड़ा सा एक हॉन्टिंग सा एक वो क्लिफ आ गया मेरे सामने. सो दैट मेड मी रीथिंक माय चॉइस कि क्या ये एग्जामिनेशन सही है मेरे लिए कि नहीं है. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आफ्टर फेलिंग द प्रीलिम्स, बिकॉज आई न्यू द नेक्स्ट डे इटसेल्फ, मैंने बहुत ज्यादा थॉट दिया था कि आई थिंक इट्स टाइम टू लीव दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज इतना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई डोंट थिंक आई कुड अफोर्ड, बिकॉज फिर करियर गैप आ जाता है एंड देन अदर एवेन्यूज simply closed down. बट तब सर मैंने सोचा कि मैंने जिस चीज की तैयारी की, दैट इज माय प्रीलिम्स, माय मेंस, उसमें तो मेरे अच्छे मार्क्स आए. CSAT जिसकी मैंने तैयारी नहीं की, उसमें मेरे मार्क्स नहीं आए. तो एट द बैक ऑफ द माइंड आई न्यू कि जिसके लिए मैं प्रिपेयर करता हूँ, उसमें मेरे पास काफी श्योरिटी है कि मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा. एंड दिस टाइम आई वाजंट एबल टू, बिकॉज एक तो शायद लक खराब था थोड़ा, एंड सेकंड आई डिड नॉट प्रिपेयर वेल बिकॉज ऑफ माय ओवर कॉन्फिडेंस. तो फिर मैंने सोचा कि अब ये मूविंग पार्ट जो है इनको कम करते हैं, फिर से 1 साल है लाइफ का. और ये भी सोचा कि अगर शायद मैं अभी नहीं करता हूँ तो जिंदगी भर एक गिल्ट या रिग्रेट रहेगा कि काश मैंने तब 1 साल दे दिया होता, तो परहैप्स थिंग वुड हैव एंडेड डिफरेंटली. फिर मदर फादर का भी सपोर्ट था कि नहीं, फाइनेंशियली तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दे आर रेडी टू सपोर्ट यू. एंड आई थिंक अ कल्मिनेशन ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स एक्चुअली पुश्ड मी अगेन कि भाई चलो ये एक लास्ट टर्न देके देख लो, अपने जो भी तुम कर सकते हो अपनी तरफ से, यू पुट इन योर एफर्ट. फिर होता है नहीं होता है, दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम. But was there any significant difference between the first in preparation methodology in the first attempt, in second and in the third attempt, or was it more or less the same? You stuck to the basic principles? No sir, it was absolutely different. क्योंकि first attempt I gave in 2021, so I started my preparation in January 2021, and I knew कि शायद क्योंकि उस साल पहले तो लग रहा था मई में होगा, तो I wasn't preparing for that year, I was preparing for 2022. But due to COVID-19 the exam got postponed to October. तब फिर मैंने सोचा नहीं, अब मैं ये एग्जाम देता हूँ, क्योंकि मैं बस टाइम की बहुत शॉर्टेज थी, तो मैं बस आई वाज ट्राइंग टू स्क्रैप अप द पीसेस कि भाई कहीं से ये कर लो, कहीं से वो कर लो.
कोई एक पैटर्न थॉट नहीं था या स्ट्रक्चर प्रिपरेशन नहीं था, और फॉर्चुनेटली मैंने क्लियर कर लिया। जब मुझे फिर बाद में पता चला तो एक कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस आ गए, जहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पास टाइम की कमी थी, थर्ड अटेम्प्ट में मेरे पास टाइम का अबंडेंस था, तो देन आई हैड टू चेंज माय स्ट्रेटजी। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये देख लिया था कि वन ऑफ द बिगेस्ट शॉर्टफॉल्स दैट आई फेस्ड वाज लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो मैंने चाहे मेंस का हो चाहे प्री का हो, मैंने प्रैक्टिस बहुत कम की एंड इसी वजह से शायद मार्क्स उतने नहीं आए। थर्ड अटेम्प्ट में सर मैंने सोच लिया था कि मैं आई वुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मैं बहुत प्रैक्टिस करूंगा। एंड दिस टाइम अराउंड आई गिव मोर देन 80 मेंस के टेस्ट। ओके। और इनिशियल फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने शायद टोटल मिला के 14 या 15 टेस्ट किए थे, तो एक तो नंबर ऑफ टेस्ट मैंने एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर दिया। सेकेंडली फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वाज रीडिंग बेसिक बुक्स एनसीईआरटीज एंड ऑल लाइक ऑल वो, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में मुझे लगा कुछ तो अलग करूंगा, मैं 2 साल बैठ के एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ सकता, तो फिर मैंने और कुछ बुक्स और रिसोर्सेज का गैदर करना शुरू किया एंड आई ट्राई टू मेक माई नॉलेज मोर इन डेप्थ एंड ब्रॉडर, जो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंजीनियरिंग की तरह पढ़ा, ये क्वेश्चन आता है इसका ये आंसर है, जो हमें कॉलेज में पढ़ते हैं। इस अटेम्प्ट में मैंने पर्टिकुलरली मेंस के लिए क्वेश्चन देखा नहीं कि पीवाईक्यू क्या है, मैंने सिलेबस के कीवर्ड्स देखे एंड आई ट्राई टू एक्सप्लोर डिफरेंट डायमेंशन फ्रॉम दैट। एंड आई थिंक दीज टू थिंग्स, जो फंडामेंटल शिफ्ट आया कि आप सिलेबस नहीं, आप ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाओ, एंड सेकंड आप प्रैक्टिस बहुत करो, उन चीजों पर मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट पे फोकस किया। So there is, whenever we talk about UPSC, the syllabus looks like, really haunting, and ऐसा लगता है कि ऐसा syllabus जिसका कोई अंत ही नहीं है. It is like a sea which doesn't have a shore, because everything under the sun can be asked or has been asked. So how do you in such situation, how do you manage wherein you are not aware about the breadth as well as the depth, कि कितना कहाँ से पूछा जा सकता है और कितनी डीप जा सकते हैं? तो सिलेबस को किस तरीके से तैयारी किया जाए? हाउ डू यू गो अबाउट सेलेक्टिंग द रिसोर्सेज, व्हाट टू लीव, आई मीन टू से व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू? किस तरीके से कोई एस्पिरेंट इस पहलू को समझे, सिलेबस वाले पहलू को, रिसोर्सेज कैसे सेलेक्ट करनी है, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितनी डीप जाना है, कितना वाइड जाना? सर तो मैं इसको थोड़ा आंसर करने के लिए 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूंगा। वन इज फॉर प्रीलिम्स एंड द अदर इज फॉर मेंस। सो आई ऑलवेज न्यू कि अगर आप एवरीथिंग अंडर द सन पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यू विल रीड नथिंग अंडर द सन, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, आप कभी रिवाइज कर पाएंगे। सेकेंडली आई मेड अ मंत्रा फॉर माई सेल्फ कि वॉट एवर थिंग आई कुड रिवाइज, ओनली दैट आई वुड बी स्टडी। मैं कोई ऐसा रिसोर्स स्टडी नहीं करूंगा जिसको मैं रिवाइज नहीं कर सकता, बिकॉज दैट डजंट सूट माई पर्पस। सेकेंडली सर मैंने प्रीलिम्स के लिए कभी पढ़ाई नहीं की जिंदगी में। आई ऑलवेज रेड द मेन्स। तो मेन्स भी काफी लोग बोलते हैं कि उन्होंने पीवाईक्यूज बेस्ड स्टडी किया, लेकिन मैंने मेन्स के पीवाईक्यू शायद सबसे कम किए होंगे। आई ऑलवेज लुक्ड एट द सिलेबस, उनके कीवर्ड्स, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लोर द डिफरेंट डायमेंशंस। तो उससे मुझे इतना पता था कि जो 15 सर्टेन क्वेश्चन से मेंस में आउट ऑफ 20 वो मेरे से सॉल्व हो जाएंगे, एंड सेम गोज फॉर प्रीलिम्स। बाकी 5 क्वेश्चन इट इज रैंडम, और उस रैंडमनेस का भी एक, उस केओस का भी एक पैटर्न है मेरे ख्याल से। तो जनरली मैंने ये देखा था, ऑब्जर्व किया था कि जो 3 महीने के न्यूज़पेपर्स है बिटवीन प्री एंड मेंस, उसमें से स्ट्राइक रेट ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी हाई, कि आप 2 से 3 क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट कर लोगे। तो 18 क्वेश्चंस तो मेरा ये हो गया कि न्यूज़पेपर बिटवीन प्री एंड मेंस सिलेबस। वो बाकी 2 क्वेश्चन मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया था कि अगर लगता है तो लगता है, नहीं लगता है तो भाई बाकी लोगों का भी नहीं लगेगा। तो भगवान ने साथ दिया? हाँ सर, इस बार लगी, भगवान ने साथ दे दिया। आई थिंक लक फेवर्ड मी दिस टाइम। तो 1-2 क्वेश्चन जो मुझे जैसे फ्योर्ड्स वाला क्वेश्चन आया था इस बार, सो मैंने वो उसका सोर्स एक वीडियो गेम से देखा था। तो आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ वीडियो गेम्स, पर्टिकुलरली असैसिन्स क्रीड वाइकिंग्स। उसमें फ्योर्ड्स का जिक्र बार-बार हो रहा था। ओके। तो अब मैं वही बोला, गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज, और वहां शायद मेरा वो काम आ गया। फॉर प्रीलिम्स सर मैंने कभी नहीं एक डेडिकेटेड बुक लिस्ट रखी, मैंने मेंस का बुक लिस्ट पूरा फॉलो किया। उसके बाद बस मैंने प्रीलिम्स की पीवाईक्यूज को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, एंड आई थिंक दैट हेल्प मी। और इंटरव्यू का तो कोई सिलेबस वैसे भी नहीं है। So one thing which is very interesting, which is coming out from this conversation, is that revision is very important part. What Kunal has specifically said कि करूंगा वही जो रिवाइज कर सकूं, ऐसी चीज जिसको मैं रिवाइज ना कर सकूं या ना करना चाहूं उसको मैं नहीं पढ़ूंगा। So that is the meaning of focused approach, clarity of knowing what to do, and more importantly what not to do. So when we talk about revision, so note taking also becomes very important, because कि किस तरीके से आप अपने रिवीजन नोट्स बना रहे हैं या किस तरीके से जनरल नोट्स बना रहे हैं। आप कुछ नोट्स बनाते थे, क्योंकि बिना नोट्स बनाए इतने बड़े सिलेबस को रिवाइज करना टेक्स्ट बुक से शायद मुश्किल होगा। सो डिड यू यूज टू मेक नोट्स, एंड इफ यस then was there any specific technique, or what was the thought which was going on in your mind when you were making notes? So I think one of the rare topper जिसने कभी नोट्स नहीं बनाए particularly,
मैंने हमेशा बिलीव किया है कि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को रिड्यूस करना चाहिए। तो मैंने ये देखा था कि ऑलरेडी इतने टॉपर्स मेरे से पहले उन्होंने नोट्स बना के रखे हैं, तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय एनर्जी इन उसी को नोट्स में दोबारा कन्वर्ट करूं। सो आई थिंक आई डिड थिंग्स डिफरेंटली। तो ऑप्शनल के तो आई हैड टू मेक नोट्स बिकॉज ऑप्शनल का सिलेबस ही वैसे, लेकिन जनरल स्टडीज ऐसे वगैरह के लिए व्हाट आई डिड वाज मैंने टॉपर के नोट्स पढ़े और जो भी बुक्स है उसका मैंने टेस्ट बहुत लिखे, जैसे आई टोल्ड। सो आई रोट 80 टेस्ट्स और उसमें सिलेबस का हर एक पर्टिकुलर पार्ट टच हो गया। नाउ वंस आई गेव द टेस्ट, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैंने ऑलरेडी एक आंसर लिखा है, आई यूज्ड टू सेंड इट फॉर चेकिंग। अब वो उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करते थे, देन इट यूज्ड टू कम बैक टू मी अगेन, देन आई वुड रीड द मॉडल आंसर्स और फिर मैं उस टेस्ट में थोड़े बहुत और एडिशंस करता था। तो फाइनली वो टेस्ट ही मेरे नोट्स बन गए। सो आई यूज्ड टू रिवाइज दोस टेस्ट अगेन एंड अगेन। उससे मेरा पूरा ब्रेथ वीक हो गया। तो 2-3 चीजें उससे फायदे हुए। एक तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट जीरो हो गया, सेकंड क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मेरे नोट्स आ गए, एंड थर्डली मैंने पूरे सिलेबस के कीवर्ड्स को टच अपॉन कर लिया। So I think that worked for me this time. Another important thing which is coming out is that one, note making is not necessary. It all depends upon how you want to prepare और क्या आपको सूट करता है नहीं सूट करता। तो let's not get into that myth कि notes जरूरी हैं and you know all those kind of things. Another very important thing which I just picked up from this reply is that assessment or testing should not be done only after you are through with the syllabus. Assessment is not only for testing. It is a very, very important tool for learning. And we just heard how Kunal used testing or practice as a tool to improve his overall, इसमें सर मैं एक चीज ऐड करूंगा। One of my friends gave me a very interesting idea. उसने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया, but I was doing it anyways. That is called active recalling. तो अगर आप सिर्फ रिवाइज करते हो तो आप पैसिवली बस पढ़ रहे हो उसको, and you are not able to ingrain it within you. अगर आप उसी चीज को पढ़ के उसको खुद अपने वर्ड्स में लिखते हो, either through टेस्ट सीरीज और किसी और वे में या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके, देन यू आर डूइंग एक्टिव रिकॉलिंग और उसका जो रिटेंशन पीरियड है दैट इज मच ग्रेटर। तो आप प्लीज बस पैसिवली बुक पढ़ के रिवाइज मत करिए, आप ट्राई करिए उसको लिखने का अपने वर्ड्स में, अपने आप उसके बारे में सोचने का। और ट्रस्ट मी, इट एड्स वेरी so active recalling is a scientifically proven methodology. It is a scientifically proven. Research has shown that you know कितने समय तक आपको कोई बात याद रहती है वो एक्टिव रिकॉलिंग पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आप एज यू राइटली सेड कि आप पैसिवली किसी चीज को पढ़ रहे हैं या बहुत एक्टिवली आप उस चीज को अपने लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में रिप्रोड्यूस करने की भी पढ़ना तो आपको तब भी पड़ेगा। इट्स जस्ट दैट इफ यू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स वंस, एक बार भी आपने लिख दिया तो वो आपका जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर देगा। एंड उसी वजह से शायद मेरे को टेस्ट सीरीज काफी काम आई, क्योंकि दैट इज एन एक्सीलेंट वे ऑफ एक्टिव रिकॉलिंग। कितनी पढ़ाई की जरूरत है? क्या बहुत ज्यादा, जैसे डज इट रियली रिक्वायर बर्निंग मिडनाइट ऑयल और इज इट लाइक जस्ट ओके मतलब हाउ डू यू व्हाट आर द काइंड ऑफ, क्योंकि ये भी बहुत सारे मिथ्स हैं कि भाई 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे पढ़िए, वेरएज मैं तो बहुत सारे ऐसे भी मतलब एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुली क्लियर किया, दे सेड दैट इट ऑल हैपेंड ऑलमोस्ट एफर्टलेसली। सर एफर्टलेसली तो नहीं बोलूंगा, इफ अगर मैंने पहले टाइम में क्लियर किया होता देन आई थिंक एफर्टलेसली वर्ड वुड हैव यू ऑलमोस्ट क्लियर्ड इट। No sir, but I think ये एग्जामिनेशन एक ऐसा है where you have to pay your debts. अब अगर किसी की अंडरस्टैंड so one thing very clear, this is not an examination about knowledge, it is an examination about your wisdom. तो कुछ लोग वो नॉलेज 6 साल में गेन कर लेते हैं लेकिन वो विजडम नहीं गेन कर पाते, और कुछ लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद क्लियर कर रहे हैं वो नॉलेज तो आई उनके पास लेकिन विजडम टू अप्लाई दैट नॉलेज वो उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ जाता है। तो अगर सिर्फ नॉलेज का खेल होता है तो 6th अटेम्प्ट वाले हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को ट्रम्प कर देते, लेकिन दैट इज नॉट द केस। अब जैसे आपने कहा कुछ लोग को एफर्टलेसली आते हैं, पर दे आर गॉड गिफ्टेड, वो विजडम वो पहले डेवलप कर पाते हैं, लेकिन मुझ जैसे को 3 अटेम्प्ट लग गए। एंड प्रिसाइजली बिकॉज आई थिंक वो जो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग द वे द कंट्री वर्क्स, बेसिकली आपको यही सिखाता है। तो किसी एक ने मेरे को काफी अच्छा एनालॉजी दिया था, व्हाट डज अ ब्यूरोक्रेट डू। तो उन्होंने बोला आप सड़क पे चल रहे हो और अगर आप सड़क के बीच पे खड़े हो और आपसे 6 अलग अलग सेक्टर्स के लोग आ गए, एंड इफ यू आर एबल टू कन्वर्स वेल विद ऑल ऑफ देम, देन यू आर अ ब्यूरोक्रेट, बिकॉज यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल द टॉपिक्स इन अ जनरलिस्ट वे। और अगर आप सबसे कन्वर्स कर पा रहे हो, यही आपको बेसिकली काम है कि आप सबको समझो एंड देन यू डिक्टेट द पॉलिसी। और यही एग्जामिनेशन में टेस्ट करता है, आपको अलग अलग चीजें वो देगा। नाउ इफ यू आर एबल टू कन्वर्स वेल विद ऑल द टॉपिक्स, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, आप उसको शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे, नहीं तो 3rd अटेम्प्ट लग जाता है वीडियो। very interesting analogy and knowledge and wisdom वाला example जो आपने समझाने की कोशिश किया, that was very deep and very interesting.
How do you manage your, current affairs preparation, because it is so dynamic? It is again, whether it is current affairs or it has, ये बहुत ही loose term है, contemporary affairs है. How do you manage about preparing that aspect of preparation, and does the preparation of current affairs change in different stages of the examination? सर व्हाट आई फाउंड वाज, जब मैं अपना फर्स्ट रन दे रहा था तब मैं अपने करंट अफेयर्स से ज्यादा वेल वर्स था एज कम्पेयर टू माय थर्ड अटेम्प्ट. तो मैंने अपने करंट अफेयर्स का जो पढ़ना है वो धीरे धीरे कम करता रहा विद ईच अटेम्प्ट. एंड मुझे लगता है इसका प्रिसाइजली रीजन ये है कि बहुत बड़ा मिथ है और लोग पता नहीं क्यों इतना ज्यादा करंट अफेयर्स के पीछे भाग रहे हैं. तो मेरा कोई दोस्त था जो अभी शायद फर्स्ट अटेम्प्ट अपना दे रहा था, कॉलेज में हम लोग सेम ईयर में थे, वो कुछ रैंडम ऐसे करंट अफेयर्स पूछ रहा था, अब्रिविएशंस पूछ रहा था और ये सब पूछ रहा था राइट बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. एंड आई फेल्ट कि यार मैं तो कुछ नहीं पढ़ा ये सब चीजें. फिर हमने एग्जामिनेशन दिया दोनों ने एंड ही फेल्ड टू क्वालिफाई, क्योंकि जो उसने करंट अफेयर्स पढ़ा वो यूपीएससी ने कभी पूछा ही नहीं है. सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग. आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना, आपको थीम वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है. कि अगर मान लो यूपीएससी हर साल किसी टेक्नोलॉजी पे पूछ रही है तो आपको उसी का डेवलपमेंट पढ़ने के ज्यादा फायदा है एज कम्पेयर टू रैंडम करंट अफेयर्स विच नोबडी, इफ इवन इफ दे आस्क, उसका क्वांटम सिर्फ 4-5 क्वेश्चन होगा. एंड अनफॉर्चुनेटली व्हाट पीपल आर डूइंग इज वो 4-5 क्वेश्चन को इन्फ्लेट करके ज्यादा साइजेबल फिगर दिखा देते हैं एंड पीपल आर रनिंग आफ्टर दैट, विच इज नॉट नेसेसरी एट ऑल. जो 80 क्वेश्चंस हैं या 85 क्वेश्चंस है प्रीलिम्स में, दे आर वेरी स्टैटिक, दे आर वेरी वेल क्यूरेटेड एंड दे आर पॉइंटेड. तो आप उसी पे अपना फोकस करिए. जो बाकी के 10 क्वेश्चन है जो रैंडम करंट अफेयर्स है, यू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट. अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या थी? सो आई ओनली रेफर टू 2 या 3 थिंग्स. एक तो किसी भी वेल एस्टैब्लिश कोचिंग का कोई करंट अफेयर कंपाइलेशन है ईयरली वाला, एक वो. डेली न्यूज़पेपर्स, और न्यूज़पेपर्स भी मैं पर्सनली करता था कि मंडे टू सैटरडे आई यूज्ड टू रीड एक्सप्रेस एंड संडे को हिंदू. एंड देयर इज वन वेरी गुड वेबसाइट कॉल्ड द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली यूज करता है अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स को बताने के लिए. सो दैट इज वन थिंग व्हिच आई यूज्ड एक्सटेंसिवली. तो बस मैंने ये 3 रिसोर्सेज यूज किए. आई नेवर रेड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस. So there is, I'm just picking up one very interesting insight from the conversation we had till now, is that when we talk about UPSC preparation, बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, करंट अफेयर्स हो सकता है, एसे राइटिंग्स हो सकता है, कोई एथिक्स की बात करते हैं, कोई किस तरीके की बात करते हैं. बट व्हाट इज कमिंग आउट क्लियरली, और व्हाट जो मेरे जहन में जो उतर रहा है, दैट वी शुड ट्राई टू strategize our preparation according to the thing which suits us the most. Let's not try to do something which is against the wave or against the tandem. जो भी एस्पिरेंट है, जो आपके लिए नेचुरली जो चीज आपके अंदर निकल के आती है, जो आपकी प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी है, आपकी स्ट्रेंथ है, ऑब्वियसली उसको थोड़ा बहुत फाइन ट्यून कर सकते हैं बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखकर या उनसे बात करके. बट वी शुड ट्राई टू डू व्हाट कम्स नेचुरली, जो एक हमारी बॉडी भी है, ऑर्गेनिकली भी हम एक रिदम के साथ काम करते हैं, हमें उसी रिदम, उसी पैटर्न को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन उसके साथ अलाइन करने की कोशिश करनी चाहिए. अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच वी वर टॉकिंग बिफोर वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस इंटरव्यू, आप बिट्स पिलाने में पढ़े हैं, आपने जेई का एग्जाम भी दिया होगा, फिर उसके बाद एक कैट का एग्जाम भी आपके बहुत सारे दोस्त दे रहे होंगे. मैं ये चाहता हूं कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज 3 एग्जामिनेशन, जेई का एग्जामिनेशन, कैट का एग्जामिनेशन एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन? हाउ आर दे डिफरेंट? व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेस्ट? And why is that there is so much uncertainty about the UPSC examination? जेई का टॉपर तो 1 साल पहले तय हो जाता है. मोटा मोटी ये तय हो जाता है कि ये बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, ये बच्चा टॉप 100 वाला है या डबल डिजिट वाला है, बहुत जगह कह देते हैं सिंगल डिजिट वाला भी है. तो इन तीनों एग्जाम्स के अगर स्पेक्ट्रम को कवर करें तो व्हाट कम्स टू योर माइंड? व्हाट इज दैट दे आर ट्राइंग टू टेस्ट? सर आई कैन कंपेयर जेई एंड यूपीएससी बिकॉज़ कैट तो मैंने दिया नहीं. सो जेई में व्हाट आई फाइंड इज दे आर ट्राइंग टू सिलेक्ट द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स इन द कंट्री. तो मैंने भी काफी जेई का प्रिपरेशन भी किया, काफी मेरे दोस्त हैं जिनकी बहुत अच्छी रैंक्स भी आई है. सो व्हाट आई फाउंड वाज दैट दे आर वेरी टैलेंटेड. उनके अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, particularly regarding maths, और वो 2-3 स्टेप आगे प्लान कर सकते हैं. एंड दैट इज व्हाट एन इंजीनियर रिक्वायर्स. अगर आप देखेंगे नीट का एग्जामिनेशन जो मेरी बहन ने दिया, तो आई एम वेल वर्स्ड विद इट. वहां पे अब मैं तीनों का स्पेक्ट्रम करूं तो जेई में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर लेस बट दे आर मोर एनालिटिकल, व्हिच इज द रिक्वायरमेंट फॉर अ इंजीनियर कि उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. अगर आप नीट का एग्जामिनेशन देखेंगे तो देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मच मोर. तो आपको वहां पे तुरंत डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा. स्पीड का खेल है एंड दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड इन योर सर्जरी वगैरह. स्पीड का खेल है. आपको इतना एनालिटिकल शायद नहीं होने की जरूरत है. आपको रूल्स फॉलो करने आने चाहिए, करेक्ट डिसीजंस लेने आने चाहिए और उस पर स्टिक रहना आना चाहिए.
यूपीएससी का एग्जामिनेशन थोड़ा और वो है, तो यूपीएससी में चीजें अनसर्टेन है, विच इज ऑल्सो द केस विद पब्लिक सर्विस. पब्लिक सर्विस इज ऑल्सो अनसर्टेन. कुछ शायद नया आ जाएगा, तो आपको डिसीजन मेकिंग भी करना है, आपको एनालिटिकल भी रहना है, और साथ ही साथ आपको वो कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए. वही चीज वो यूपीएससी पूछ रहा है. अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा भी नहीं है. ऐसा क्यों होता है कि एक साल पहले हमें नहीं पता चल जाता है कि फलाना बंदा टॉप करने जा रहा है यूपीएससी, जेई में पता चल जाता है? मुझे इसका भी कंक्रीट आंसर, मैं अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूं सर, बिकॉज जेई में सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन होता है, तो आदमी की पर्सनालिटी कैसी भी हो, इट डजेंट मैटर हाउ मेनी मार्क्स इज गोइंग टू गेट. यूपीएससी में आप देखेंगे अगर, तो जनरली जो इंटरव्यू है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. सम डेज यू आर एबल टू कन्वे योर थॉट्स वेल, सम डे यू आर्ट, तो आप शायद उसमें नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं. सेकेंडली सर, मुझे जो ये लगता है वो ये है कि यूपीएससी में 50% ही आपका मैक्सिमम मार्किंग है, और हर एक स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में जो ब्रेथ है वो बहुत ज्यादा है. जैसे आप जेई का देखेंगे तो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, आपने तीनों को प्रैक्टिस कर लिया, यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स. यूपीएससी में 7 मेरिट के सब्जेक्ट्स हैं, 2 आप और 1 आपका इंटरव्यू है. अब जरूरी नहीं कि आप 7 में 7 टॉप कर जाए, विच इज द केस विथ वो. और प्लस अगर किसी बंदे का जो जेई में है उसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, तो मैथ्स के बलबूते पर टॉप कर सकता है. यूपीएससी में आपको हर एग्जामिनेशन को अच्छे से स्कोर करना पड़ेगा. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो इस वजह से मुझे लगता है कि शायद, तो आई वाज स्पीकिंग टू अनदर यूपीएससी टॉपर एंड आई गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन. ही सेड कि आईआईटी का जो टॉपर है, आईआईटी का जो बच्चा है, वो एनालिटिकल है, वो इनोवेशन करता है. बिल्कुल. जो कैट क्रैक करता है वो उस इनोवेशन को एक प्रोडक्ट का शेप देता है, प्रोडक्ट विच कैन बी कंज्यूम्ड इन दी, he defines the product which can be sold in the market. और यूपीएससी का जो वो बंदा है वो सोचता है कि इस प्रोडक्ट को सोसाइटी के साथ कैसे इंटीग्रेट करूं, सोशली और फाइनेंशियली वायबल इस प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाए. तो ये 3 अलग अलग थॉट प्रोसेस थे. Another thing I would like to understand, and this becomes very very crucial aspect of UPSC preparation, as in your case also we had seen that you had a lot of peaks and a lot of bottoms in this entire preparation, which sometimes extends for years to go. How do you manage your emotions like fear, anxiety, failure, demotivation? How do you manage and how do you go about doing that? सर आई थिंक ये सारे इमोशंस आपके अंदर तभी आते हैं वेल यू आर टू मच वरीड अबाउट द रिजल्ट. तो जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जब दिया, आई वॉज टू मच वरीड अबाउट कि भाई होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या करूं मैं, और इंटरव्यू कैसा गया. तो आई वॉज टू मच वरीड अबाउट द रिजल्ट, और जिस वजह से शायद ये सारे फीलिंग्स नेचुरली आ गए. जब मैंने थर्ड अटेम्प्ट देना शुरू किया, आई न्यू कि रिजल्ट 2 साल बाद है. अब मैं इसमें ये सारे इमोशंस दोबारा अगर मैं कंसिडर करने लगूंगा तो 2 साल की जर्नी वुड बी अ हेल्प फॉर मी. सो व्हाई नॉट forget about the result of that particular examination, instead focus on the result of the next test you are giving. तो फिर मैंने अपनी लाइफ को, जैसे मैं बोला, मैंने बहुत टेस्ट किए, इन छोटे छोटे टेस्ट में बांट लिए, एंड आई यूज्ड टू सिर्फ मैं इनके रिजल्ट्स पे फोकस करता था, एंड आई कंप्लीटली फॉरगॉट कि यूपीएससी जैसा भी कोई एग्जामिनेशन है कि नहीं है. बिकॉज मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा, जैसे लखनऊ में कहते हैं हवा बनाना, तो वो चीज़ों को इतना इन्फ्लेट कर देती, ऐसा एग्जामिनेशन दुनिया बदल देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, which is perhaps true as well, but if you think too much about that हवा, आप फिर एक्चुअल चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाएंगे. सो जब मैंने थर्ड अटेम्प्ट देना शुरू किया, आई कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो सोशल मीडिया वगैरह है. सो आई प्रैक्टिस सोशल आइसोलेशन. मैंने से अपने 1-2 दोस्त जो इस प्रिपरेशन में ऑलरेडी कनेक्टेड थे उनसे बात की. सेकेंडली, मैंने अपना रिजल्ट ओरिएंटेड लाइफ बना लिया था कि भाई इस टेस्ट में मेरे को टॉप 10 में आना है या टॉप 20 में आना है. एंड थर्डली, आई बिकेम अ लिटिल बिट स्पिरिचुअल एज वेल ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर जर्नी, because ultimately you need a power beyond your imagination to just say कि बेटा सब सही रहेगा जिंदगी में. Wonderful, wonderful. So I think these 3 things helped me a lot. Another thing, how do you cope up with feelings of guilt, like पढ़ाई नहीं हो पाई, ज़्यादा मस्ती कर लिया, ज़्यादा OTT देख लिया, और मेरे मार्क्स कम रह गए, और लोग मुझसे ज़्यादा, मतलब ये कई बार गिल्ट की फीलिंग आ जाती है ना. तो how do you cope up with the feeling of guilt? So I didn't cope up with it. I used it as a motivator. Guilt, I think, is one of the strongest emotions that humans possess. तो अगर आपको गिल्ट है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो perhaps you would be working harder. कोई अगर जिम जा रहा है रोज और उसने कुछ चीट डे रख लिया, वो गिल्ट आता है उसके अंदर. तो why not use guilt as a motivating factor? और मैंने उसी को यूज किया. कभी अगर नंबर कम आए, गिल्ट है कि मैं यार जिंदगी का वेस्ट कर रहा हूँ, चलो नेक्स्ट डे और ज्यादा पढ़ाई करूंगा मैं. So I used it in a positive sense. Very wonderful. So as you know, it is rightly said that fear also has 2 meanings. Every emotion has both 2 aspects. One meaning of fear can be, forget everything and run.
and another meaning of fear can be that forget everything and rise. Rise. So every emotion has two things. Can you describe any specific moment in your exam which was particularly enlightening or transformative? I would also like you to talk about more that when you said that during the course of the preparation to remain on track, you became a little bit of spiritual also. I would like you to talk about more that, because you need that power to stay on track and not to get distracted. So I think one of the things that I learned from this examination is power of originality. तो जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो इंटरव्यू सबका होता है, मेरा भी हुआ था, एंड आई टुक अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट एंड ऑल, मॉक इंटरव्यूज, एंड दे ट्राई टू मेक माई पर्सनैलिटी इनटू समथिंग विच वॉज नॉट द केस, और मैंने असली इंटरव्यू में वही डिलीवर करने की कोशिश की, एंड मैंने एम्युलेट किया, जो भी कहें, दूसरों को कॉपी करने की कोशिश की, एंड आई थिंक आई गॉट लेस मार्क्स बिकॉज ऑफ दैट. तब मेरे को एक वो यूरेका मोमेंट आया, जिंदगी में कुछ भी करो जो इंपॉर्टेंट है वो अपने दिल से ओरिजिनल रह के करो, बिकॉज इफ यू ट्राई टू इमिटेट समबडी एल्स यू आर प्लेइंग अ लूजिंग गेम. अगर वो बैटलफील्ड में आप ऐसे बैटलफील्ड में जा रहे हो जो आपके लिए बना ही नहीं है, तो आप जीतने का सोच भी कैसे सकते हो? जो आप नहीं हो, अगर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो आप थोड़ा बहुत तो नीचे अपने आप ही उतर गए. प्लस सेकंड ये रहता है कि अगर आपने किसी और को कॉपी करके अच्छे नंबर आ गए, चलो ठीक है, आपकी मेहनत रंग लाई, लेकिन अगर आपने किसी को कॉपी किया और मार्क्स कम आ गए तो एक और गिल्ट हो गया कि भाई मैं तो इतनी मेहनत भी की कॉपी करने में, तब भी मेरे मार्क्स कम है, और शायद मैंने अपनी असली पर्सनैलिटी दिखाई होती तो जैसे भी हो, जो भी नंबर थे वो मेरे थे. तो इस अटेम्प्ट के बाद इस पूरे प्रिपरेशन में मैंने ये सोचा था कि मैं टॉपर्स को सिर्फ एज अ ब्रॉड, तो मैं अपना जो फीलिंग है वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और जो टॉपर्स है वो बस लॉज होंगे, उन लॉज को मैं अमेंड कर सकता हूँ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे. तो दैट वाज माय होल थिंग. तो ओरिजिनलिटी मैंने अपनी फिर सोची कि अब कुछ भी हो जाए जिंदगी में, मैं कभी किसी को इमिटेट नहीं करूंगा. वॉट एवर आई फील इज करेक्ट फॉर मी, जो भी मेरा विजडम है, अब वो डिसीजन सही हो सकता है, गलत हो सकता है, दैट इज अ सेपरेट इशू, बट इंटेंशन शुड ऑलवेज बी ओरिजिनल. So this is coming out very loudly and clearly in this discussion is that originality, आपकी बॉडी का रिदम क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, हमें अपनी तैयारी उसके हिसाब से अलाइन करनी है, rather than blindly following anybody's interviews, anybody's advice, because I've seen a lot of aspirants, they start watching, they will close their mind and start watching इसका इंटरव्यू, उसका इंटरव्यू, ये इंटरव्यू, वो इंटरव्यू, ये करंट अफेयर्स में पढ़ना, ये अखबार पढ़ना, all that is fine. I'm not saying that please don't do that, but what I'm trying to say is that कि हर चीज को evaluate कीजिए, आंखें खोल के और दिमाग खोल के हर चीज को समझिए, और जो चीज आपकी प्रॉपर्टी की, आपकी प्रिपरेशन के साथ अलाइन होती है, जिसके साथ आप ट्यून अप कर सकते हैं, उसी को ही अडॉप्ट कीजिए, अदरवाइज चीजें नहीं आएंगी. यू हैव टू राइड अलोंग विद द वेव, यू कैन नॉट राइड अगेंस्ट द वेव. इसका मैं एग्जांपल देता हूं सर, दो केसेस में एग्जांपल मेरे ट्रू रहे. एक तो नोट्स वाला, पूरे सबने, जो भी मेरे टीचर्स थे, लोगों ने बोला क्या ये काम कर रहे हो तुम यार, नोट्स सब बनाते तुम भी बनाओ. मैंने कहा सर मैं नहीं बनाऊंगा, जो मुझे सही लगता है मैं वैसे ही नोट्स प्रिपेयर करूंगा. सेकंड, और शायद वो ओवरवेलमिंगली था, वो था मेरा जनरल स्टडीज पेपर 2 का प्रिपरेशन. तो GS2 और मेरे PSI में बहुत ओवरलैप है. तो जनरली मार्केट में ये परसेप्शन है कि आप अपनी ऑप्शनल की नॉलेज अपने जनरल स्टडीज में मत यूज करो, इट शुड बी जेनरिक पेपर. लेकिन और जितने भी कोचिंग वाले थे सबने मेरे को यही बोला, लेकिन मैंने अपना इस बार ओरिजिनलिटी रखा. मैंने सोचा मैं कोई आर्टिफिशियल बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करूंगा नॉलेज में. अगर मेरा PSI का नॉलेज मेरे जनरल स्टडीज 2 के पेपर को एनहांस कर सकता है किसी भी वे में, मैं उसको फ्रीली यूज करूंगा. वहां फिर मैंने अपना स्टिक किया इस बार में कि भाई जो मुझे सही लगता है मैं वो करूंगा. परहैप्स अगर मैंने दूसरों की बात सुन ली होती तो शायद मेरे GS2 में इतने अच्छे नंबर नहीं आते जितने इस बार आए. तो आई थिंक ओरिजिनलिटी इज वेरी ट्रू. आप फेल हो, सक्सेस हो, दैट इज सेपरेट, लेकिन गिल्ट कभी जिंदगी में नहीं जाएगा. So the message which is coming out is that if there are 1,000 students who are cracking the examination, there are 1,000 strategies, there are 1,000 ways to crack the examination, and rather than emulating what everybody else is saying or what everybody else is doing, you have to find out your own methodology, and that is when eureka moment happen, and that is when it starts becoming kind of effortlessly, everything gets aligned. Bilkul, when your body, mind and soul gets aligned, Yuvraj Singh hits 6 sixes in 1 over, not because he was talented. Yes, he was talented, but these moments are very rare, when everything falls in place. Yes. And it looks like as if God is standing you or God is holding you and things are happening on their own. Bilkul, so any interesting moment in your interview? This question must have definitely come that you came in the interview in the first attempt, you could not clear prelims. Any interesting moments in the interview of the last time?
सर मैं दोनों इंटरव्यूज काफी यूनिक रहे एंड जस्ट टू से कि कितना ज्यादा इसमें अनसर्टेनिटी है, दोनों इंटरव्यू मेरा डैफ दोनों में सेम था, एग्जैक्टली सेम, बट दोनों इंटरव्यू कंप्लीटली डिफरेंट थे। तो फर्स्ट इंटरव्यू में मुझे अभी भी याद है एंड आई थिंक इस वजह से नंबर कम है, वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स मस्ट हैव ईटन एवोकाडो दैट मॉर्निंग। तो मेरा कम से कम 10-15 मिनट क्वेश्चनिंग सिर्फ इस एवोकाडो फ्रूट पे ही चला, व्हिच आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड अबाउट। तो अब वो अनसर्टेनिटी था। इस बार मेरा इंटरव्यू काफी हद तक डैफ अलाइन था, उसमें 2-3 पॉइंट्स ऐसे थे जहां पे मुझे लगा या मुझे बताया गया जब मैंने आके डिस्कस किया कि मैंने शायद गलत बोला, लेकिन अगेन आई स्टक टू माय गन्स। जैसे पहला जो मेरे जो चेयरपर्सन थे उन्होंने पूछा कि you are a joint secretary in Central Public Work Department and a 100 crore tender has been issued. All the procedures have been followed, but after 1 month the contractor approaches you. He says that the work order which was supposed to be released in 1 week has still not been issued. On top of that, I have given the secretary of your department 50 lakh rupees and I'm also willing to give it to you. So then the chairperson asked me, what would you be doing? तो मैंने तो ये कहा सर कि since there is only allegations with regards to the secretary, I cannot initiate any proceedings without he giving me proofs and all. Secondly, एक वो था कि उन्होंने पूछा था will you issue the work order? So I said I'll issue the work order because department की गलती है, उसको तो 1 हफ्ते में रिलीज करना था। Now all the people surrounding me after coming out of the interview said you have made a big blunder. पहला तो you have to be very alert. अगर सेक्रेटरी के खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है, you should सीधे आप इन्वेस्टिगेशन ओपन कर दो बिना किसी से बात किए, बिकॉज वही करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं। एंड सेकंड, यू शुड नॉट हैव इशूड द वर्क ऑर्डर बिकॉज इसमें क्या बोलते हैं काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए। लेकिन व्हाट आई थॉट देयर वाज कि ऐसे तो कोई भी आके किसी का अगेंस्ट भी कंप्लेंट कर देगा और आप विक्टिमाइज कर सकते हो सकता है सेक्रेटरी सही हो और ये बस उसको विक्टिमाइज करना चाहता हो। सेकंड थॉट जो मुझे वहां पे आया कि आपको ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस करना है, कि अगर मान लो वो कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है तो आपको उसको ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं शायद उसका गलती नहीं था कोई भी एंड इट इज द फॉल्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। तो मेरा वो थॉट प्रोसेस था और मुझे तो इस बार लगा कि इस बार भी नंबर बहुत कम आएंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली 193 आई गॉट दिस टाइम एंड आई थॉट, मुझे लगा कि मेरा थॉट प्रोसेस शायद रेजोनेट कर दिया चेयरमैन के साथ। नहीं, आपने ओरिजिनलिटी मेंटेन की ना, मतलब कई बार क्या होता है जब हम ओरिजिनलिटी नहीं मेंटेन करते तो क्लैश ऑफ थॉट्स बहुत होता है। सर, और जब क्लैश ऑफ थॉट्स होगा, आपका मन कह रहा है कुछ और करने को, दिमाग या लॉजिकली जो सोसाइटी में फीड करती है वो कुछ और करने को कह रहे हैं, तो जब क्लैश होता है तो जो आंसर निकल के आता है वो अननेचुरल होगा। बिल्कुल सर, आप बोल तो रहे होंगे, मैकेनिकली बोल रहे होंगे, बट इट वुड नॉट बी कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट एंड प्रॉब्ली so any misconception about UPSC preparation or let's say top 3 misconceptions about UPSC preparation which you would like to debunk? So पहला misconception है कि everything under the sun comes, ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। There is a very targeted syllabus that they are trying to test और जनरली सिर्फ उसी में से आता है। अगर आपने बेसिक चीजें पढ़ ली है तो बहुत चांसेस है कि आप इसको क्रैक कर लें। सेकंड सर ये है कि you only have to be engrossed in books, आप कुछ और देख नहीं सकते। पर्सनली सर मैंने बहुत टीवी सीरीज देखे, बहुत मूवीज देखे मैंने इस प्रिपरेशन के टाइम पे, काफ़ी स्पोर्ट्स नए सीखने की कोशिश भी की मैंने एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट क्योंकि मेरे फादर के हर बार ट्रांसफर हो जाता था, तो वॉट एवर न्यू प्लेस आई यूज्ड टू गो, आई यूज्ड टू ट्रैवल द लोकल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। तो आपको कमरे में बंद रह के सिर्फ पढ़ाई करनी है, दैट इज आई थिंक ऑल्सो अ वेरी बैड मिथ दैट नीड्स टू बी बस्टेड। एंड थर्ड ऑफ ऑल सर आई थिंक यू हैव टू, इट्स अ लव स्टोरी टाइप ऑफ थिंग यूपीएससी के साथ। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड योर लवर, आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। सिमिलरली अगर आपने यूपीएससी को एज अ मैकेनिकल चीज देखा कि ये सिलेबस है, ये है, अब आपको वो पढ़ना है, तो आई थिंक यू नेवर बी एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन। जैसे ही आपने अंडरस्टैंड कर लिया, जैसे यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या रिक्वायरमेंट्स है इसकी, क्या मुझे इन्वेस्ट करना है, ओनली देन द लव स्टोरी वुड आई थिंक बी कंप्लीटेड। Wonderful, wonderful. So that's it, Kunal. Thanks a lot for your time. It has been really wonderful and enlightening speaking to you. I have also learned a lot of things and I would try to put them into practice, and we wish you all the best. Thank you. Thank you. Thank you very much.